Hey friends, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. This is my first lecture on Indian polity and governance. In this session, I am going to discuss the current affairs regarding Indian polity and governance. So let us start with the current affairs. Now, what is constructive vote of no confidence? First, let me explain you what is vote of no confidence. It is a statement or vote about whether a person in position of responsibility, that is head of the government, is no longer deemed fit to hold that position, perhaps because they are inadequate in some aspect, are failing to carry out obligations or making decisions that other members feel detrimental. So that is vote of no confidence. So now what is constructive vote of no confidence? It is just a variation on the motion of no confidence that allows a parliament to withdraw confidence from the head of the government only if there is a positive majority for a prospective successor. Is it clear? I am repeating for you what is constructive vote of no confidence. It is a variation on the motion of no confidence that allows a parliament to withdraw confidence from the head of the government only if there is a positive majority for a prospective successor. Is it clear? Now, let us see. In order to implement simultaneously, I'm sorry guys. In order to implement simultaneous elections, the ruling BJD in Odisha has proposed the idea of constructive vote of no confidence. Is it clear? So सबसे पहले कहाँ पे आए हैं? ओडिशा में. They have proposed the idea of constructive vote of no confidence. Then this concept was followed by Germany. इज़ इट क्लियर? तो वहाँ पे लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था, इंडिया की लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था इन 2018 रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट. जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? बर्नस्टाइन है, ही कैन मीन्स जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है, ही कैन रिमूव अ चांसलर ओनली व्हेन इट इज साइमल्टेनियसली एग्रीज ऑन अ सक्सेसर. So this makes it harder to remove a chancellor because opponent of the chancellor not only must disagree with his or her governing but also must agree on a replacement. Is it clear? So what is the underlying premise is that there is a fixed 5-year tenure and there will be a government no matter what. So this was the constructive vote of no confidence. So I am repeating for you people. ये उड़ीसा में आया था सबसे पहले, देन इट इज़ फॉलोड इन जर्मनी. तो कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी पार्लियामेंट है उन्होंने कहा दे कैन रिमूव अ चांसलर ओनली व्हेन इट साइमल्टेनियसली एग्रीज ऑन अ सक्सेसर. इज़ इट क्लियर? तो उन्होंने कहा अगर वो इट इज़ नॉट ईजी फॉर ए चांसलर टू रिमूव, ठीक है, टू रिमूव अ चांसलर इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क. Why? Because opponent of the chancellor not only must disagree with his or her governing but also must agree on the replacement. Is it clear? So there is a fixed 5-year tenure and there will be a government no matter what. Next is interline permit system. Now what is interline permit system? It is an official travel document which is issued by the government of India. ठीक है, ट्रैवलिंग का डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिया की गवर्नमेंट इशू करती है. एंड दिस डॉक्यूमेंट अलाउज इनवर्ड ट्रैवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन इनटू अ प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड. क्या इस डॉक्यूमेंट से गवर्नमेंट का क्या एफर्ट है, क्या पर्पस क्या है? उनका पर्पस ये है कि टू रेगुलेट मूवमेंट टू सर्टेन एरियाज लोकेटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? So in inner line permit you have got it. What is it? Now if a petition is filed before the Supreme Court, petition फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया?
Central or Nagaland government को they have given the steps direction that to take these steps for the protection of non-Nagas living in Dimapur following the imposition of inner line permit. And this inner line permit system is currently operated in Mizoram, Andhra Pradesh and Nagaland. मणिपुर के पास भी है था. They also had the system of inner line permit, but it was abolished in 1950. Now what section 2 of Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 says? It empowers सेक्शन 2 क्या है? पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि इनर लाइन पर प्रिस्क्राइब करे टू प्रोहिबिट सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी क्लास ऑफ सच सिटीजन्स गोइंग बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड लाइन विदाउट अ पास. इज इट क्लियर? Next, parole. Now this term has been heard by everyone. Parole. कि parole होता क्या है? What is a parole? It is a system of releasing a prisoner with suspension of the sentence. Parole means that a permission is given to a prisoner to leave prison early on the condition that he or she behaves well. Is it clear? मतलब अगर ये भी है प्रिजनर का कि कुछ टाइम के लिए उसकी पनिशमेंट सस्पेंड कर देते हैं. इज इट क्लियर? उसकी पनिशमेंट को सस्पेंड कर देते, दैट इज़ अ पैरोल. सो अब ये देखो गुरमीत राम रहीम सिंह जो कि डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं. एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट हिम. ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ फॉर मर्डर एंड रेप. He has applied to Haryana government for parole. Is it clear? Now parole, it is considered as a reformative process and was introduced with a view to humanizing the prison system. इंडिया में अब ये क्या है कि जो पैरोल और फरलॉन्ग है दे आर कवर्ड अंडर प्रिजन एक्ट ऑफ 1894. Prisoners हैं they were convicted of multiple murders or under the unlawful activities prevention acts, they are not eligible for parole. Now what is furlong? It is similar to parole, but there is a little bit difference between the two terms. Furlong, this is given in a long term imprisonment. Is it clear? जो furlong है it is seen as a matter of right that is to be granted periodically irrespective of any reason and merely to enable the prisoner to retain family and social ties. Parole is not a matter of right and may be denied to prisoners even when he makes out a sufficient case. Is it clear? So now you are clear with parole and furlong. Next is Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland. Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland, which is in short form it is known as RIN, RIIN. Now what do you mean by this term RIN? जनरली ये क्या है? ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन पे उनके मूव पे चेक रखते हैं कि वेयर दे आर गोइंग. ठीक है. इसके अंडर क्या होता है कि एक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ स्टेट के जो एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ इनहैबिटेंट्स हैं वो लिस्ट बनती है एंड दैट इज़ रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 5 years. तो स्टेट गवर्नमेंट है दे हैज़ अर्लियर सेट कमेटी ऑन दी इनर लाइन परमिट में विच हैज़ रिकमेंडेड कमिंग अप विद अ मास्टर लिस्ट विच विल बी नोन एज रिन. तो जो नागालैंड होम कमिश्नर आर रामाकृष्णन है ही हैज़ इशूड अ नोटिफिकेशन टू सेट अप रिन, रजिस्टर ऑफ इंडिजियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड. इज इट क्लियर? That is a variant of National Register of Citizens that neighboring Assam is updating. Object मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. Is it clear? Methodology. What is the method? ये जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है ये पूरे सर्वे करने के बाद विलेज वाइज प्रिपेयर की जाती है, वार्ड वाइज प्रिपेयर की जाती है. Is it clear? On the basis of official record. And this survey will be taken into account whether indigenous inhabitant is residing in his or her residence, permanent resident में या फिर वो कहीं और से आई हैं. आधार नंबर्स भी अगर ज़रूरत पड़ेगी उनको भी वो रिकॉर्ड करेंगे.
ठीक है। बॉडीज़ कौन सी हैं इसमें जो इन्वॉल्व होती है? होम कमिश्नर, ठीक है, ये मॉनिटर होम कमिश्नर करते हैं, बट लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो दिस वॉज रिन रजिस्टर ऑफ इंडिजियस इनहेबिटेंट ऑफ नागालैंड. नाउ फ्री लीगल एड. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री लीगल एड? फ्री लीगल एड के बारे में सबने सुना होगा. ये सर्विसेज किसको अवेलेबल है? दिस सर्विसेज इज़ अवेलेबल टू दी पुअर पर्सन जो कि लॉयर हायर नहीं कर सकते हैं, उनकी फ़ी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए है ये. सो 1987 में देर वॉज एक्ट, लॉ आया था एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट. और ये क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इज़ इट क्लियर? There is also a NALSA, National Legal Service Authority. National Legal Service Authorities और भी सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे. इज़ इट क्लियर? सो फ्री लीगल सर्विसेज हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के, दैट आर अवेलेबल जनरली टू द पर्सनस बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, वुमेन, चाइल्ड, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या कोई और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, उनको ये प्रोवाइड की जाती है. इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो काफ़ी लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, दे आर इंटाइटल टू फ्री लीगल एड सिस्टम. इज इट क्लियर? दे आर इंटाइटल टू फ्री लीगल एड सिस्टम, दैट इज़ अ फ्री लीगल एड. नेक्स्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. राज्यसभा ने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लिया है किस पे? इलेक्ट्रल फॉर्म्स की ज़रूरत पे. इज़ इट क्लियर? जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है ये एक प्रोसीजरल डिवाइस है विच इनेबल्स मेंबर्स टू रेज डिस्कशन ऑन द मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस विदाउट अ फॉर्मल मोशन. इज़ इट क्लियर? नोटिस है, इस पर नोटिस दिया जाता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगी, दैट इज़ टू बी गिवन इन राइटिंग एंड दैट इज़ एड्रेस टू द सेक्रेटरी जनरल. उसमें मैटर भी, नोटिस में आप मैटर भी स्पेसिफाई करोगे कि किस मैटर के लिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करना चाहते हो. इज़ इट क्लियर? देन नोटिस विल बी accompanied by an explanatory note stating reason the discussion and supported by signature of at least 2 other members. Is it clear? सो चेयरमैन डिसाइड करेगा राज्यसभा का कि वेदर दी नोटिस इज एडमिसिबल और नॉट. हाँ, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं टू एडमिट दी नोटिस. टाइम क्या होगा डिस्कशन का? इट विल नॉट एक्सीड, चेयरमैन है, मे अलाउ सच टाइम नॉट एक्सीडिंग 2.5 hours फॉर होल्डिंग सच डिस्कशन. इज इट क्लियर? प्रोसीजर क्या है अभी इस डिस्कशन को रेज करने का? फर्स्ट मेंबर और इन हिज एब्सेंस द सेकेंड वन एंड सो ऑन इन हुज नेम द डिस्कशन स्टैंड मेक्स अ शॉर्ट स्टेटमेंट. मेंबर्स आर कॉल्ड टू स्पीक पार्टी वाइज. At the end of discussion, the minister concerned replies and the discussion is concluded. Is it clear? So this is short duration discussion. कोई formal motion नहीं है, ना ही कोई वोटिंग का चक्कर है यहाँ पे. जो मेंबर रेज करते हैं डिस्कशन, दे हैज़ नो राइट टू रिप्लाई. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसमें क्या है आपका जो मिनिस्टर है फॉर पर्सनल, दे हैव इन्फॉर्म्ड द लोकसभा एज दैट एज पर डिसिप्लिनरी रूल्स गवर्नमेंट के पास राइट है कि दे कैन प्रोसीड अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस. इज इट क्लियर? तो गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट राइट है टू रिटायर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्री मेच्योरली भी. अभी उनकी रिटायरमेंट नहीं आई है, बट पहले ही उन्हें कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ इंटेग्रिटी एंड इनफेक्टिवनेस इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एंड दैट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल रूल्स. Rule 48 of Central Civil Services Pension Rules 1972, Rule 16(3) amended of All India Services Death cum Retirement Benefit Rules 1958. अब ये जो रूल्स हैं ये क्या ले डाउन करते हैं? दे ले डाउन द पीरियोडिक रिव्यू एंड प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस फॉर द पीरियड जुलाई 2014 जुलाई से 2019 मई तक
टोटल ऑफ 36,756 ग्रुप ए में, 82,654 ग्रुप बी में ऑफिसर्स have been reviewed under fundamental rules and other provisions. Is it clear? So action under these rules have been recommended against 125 group A and 187 group B officials. Is it clear? Compulsory retirement of government officials. Next, Protection of Human Amendment Bill 2019. नाउ अंडर दिस पार्लियामेंट ने क्या पास किया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2009 टू मेक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. इज इट क्लियर? अब इनके फीचर्स क्या हैं? ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2009 के फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर इज़ कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इनका जो मेंबर्स होंगे, he must have been a judge of the Supreme Court, so he is eligible to be appointed as chairperson of the commission. In addition to that, person who has been Chief Justice of India. Is it clear? Next salient feature है Judge of High Court. He is eligible to be appointed as chairperson of the State Commission. In addition to that, person who has been Chief Justice of High Court. थर्ड है जो कमीशन के मेंबर्स हैं, दैट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3, और उनमें से एक मेंबर कौन होगा? वुमेन होगी. फोर्थ इसेंशियल फीचर इज़ दैट इट इंक्लूड्स द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये डीम्ड मेंबर है कमीशन के. इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेलियंट फीचर, रिड्यूस द टर्म ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड स्टेट कमीशंस फ्रॉम 5 to 3 years एंड दे शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. इज इट क्लियर? Next, to confer upon the state commissions the function relating to human rights being discharged by union territory other than UT of Delhi, which will be dealt with by commission. Is it clear? So this was your Protection of Human Rights Amendment Bill 2019. Next is Right to Information Amendment Bill 2019. Right to Information Amendment Bill 2019. अब पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया, ये बिल पास किया है, ताकि इसमें बिल में क्या है, इसका पर्पस क्या है? टू अमेंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में सबने सुना हुआ है. इसको अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट हैज़ पास द राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2009. बिल है वो क्या चेंज करता है? इट चेंजेस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट द सेंटर एंड इन द स्टेट. इज इट क्लियर? RTI एक्ट 2005 क्या कहते हैं? इट सेज चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स सेंटर और स्टेट लेवल पे दे विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. RTI एक्ट 2005 सेज. Now what Amendment Bill 2019 says? सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म नोटिफाई करेगी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का. ठीक है, टेन्यूर कौन फिक्स करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ अबाउट दिस सैलरी. 2005 एक्ट सेज सैलरी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एट द सेंट्रल लेवल दैट विल बी इक्विवेलेंट टू बी किसके बराबर होगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शनल कमिश्नर के बराबर होगी. मींस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी किसके बराबर है? इलेक्शन कमिश्नर के. बट व्हाट अमेंडमेंट बिल 2019 सेज कि जो इनकी सैलरीज़ हैं, अलाउंसेस हैं या कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर्विसेज की एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? नाउ डिडक्शन इन सैलरी. RTI एक्ट 2005 व्हाट इट सेज? इट सेज कि जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सेंटर और स्टेट लेवल पे, अगर इनको कोई पेंशन मिल रही है या फिर कोई
और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उनकी सैलरी रिड्यूस हो जाएगी कितनी, अकॉर्डिंग टू देयर पेंशन, जितनी उनकी पेंशन है उतनी ही उनकी सैलरी रिड्यूस हो जाएगी. व्हाट अमेंडमेंट बिल 2009 सेज, इट रिमूव्स दिस provision. Is it clear? So this was your right to information amendment bill 2019. So in this lecture I have discussed 4 to 5 topics. So firstly I have discussed about the आपका ये जो मैंने डिस्कस किया था, हम जस्ट इसको 5 मिनट्स में मैं आपको पूरा समराइज कर देती हूँ व्हाट आई हैव डन टुडे. सो फर्स्टली वी हैव डन कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. इज इट क्लियर? दिस वाज स्टार्टेड इन ओडिशा, लेकिन ये क्या है कि जर्मनी ने फॉलो किया था. दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ, जिसमें कि आपको चांसलर रिमूव करना होता है. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू रिमूव द चांसलर. और इज़ इट क्लियर? तो वो है कि इसमें 5 ईयर उनका टेन्योर फिक्स होता है. दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. देन वी हैव डिस्कस अबाउट इनर लाइन परमिट, कि अगर आपको जो इंडियंस हैं विद इन, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट टू ट्रैवल ऑफिशियली, दैट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. देन वी हैव डिस्कस्ड पैरोल. पैरोल क्या है कि आपको जो पनिशमेंट मिली है, पनिशमेंट में कि अगर थोड़ा टाइम के लिए आपकी पनिशमेंट सस्पेंड कर दी है एंड दैट टाइम पीरियड विल बी इंक्लूडेड इन योर पनिशमेंट, दैट इज़ पैरोल. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रजिस्टर ऑफ इंडिजियस इनहैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, रिन. इनमें क्या था कि इंडिजियस पीपल की एक लिस्ट प्रिपेयर होती है कि कोई ऐसे फेक लोग तो यहाँ नहीं घूम रहे, इनएलिजिबल पर्सनस तो नहीं घूम रहे हैं. इज इट क्लियर? देन फ्री लीगल एड सर्विसेज फॉर द लीगल एड इज़ प्रोवाइडेड टू द पुअर. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अर्जेंट मैटर्स के लिए जो ये आपकी प्रोवाइड की गई है. देन कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वी हैव डिस्कस्ड, कि अगर उनकी किस बेसिस पे, लैक ऑफ इंटीग्रिटी एंड इनफेक्टिवनेस के बेसिस पे उनकी रिटायरमेंट पहले कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की. देन वी हैव डिस्कस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट बिल 2009. क्या फीचर्स हैं इनके, कौन कौन इनके मेंबर होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड. देन राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 की 2005 एक्ट क्या बोलता है, 2019 अमेंडमेंट बिल क्या कह रहा है. तो उसमें उन्होंने कहा था, एक तो ये कहा है कि जो 2005 एक्ट है, CIC एंड ICs they will hold the term for 5 years, but amendment bill 2019 what it says कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा. देन दे वर टॉकिंग अबाउट दी सैलरीज, उनकी सैलरी कितनी होगी वो बताया था. अमेंडमेंट बिल कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. डिडक्शंस इन सैलरी 2005 में कहा था कि अगर प्रीवियसली उन्हें कोई बेनिफिट मिल रहा है पेंशन का, देन देयर सैलरी विल बी डिडक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर पेंशन. लेकिन अमेंडमेंट बिल ने ये रिमूव कर दिया. So I end up my lecture over here. In the next session I will be coming up with more legal current affairs. So please do watch my lectures regularly. Thank you.